Very good morning, students. As you know that yesterday I have started lesson number 6 of Indian economic development, and the lesson name was economic reform since 1991 or new economic policy. And I have told you about the new economic policy and the reforms which the government has done under this new economic policy. I have already told you these are 3 LPG: liberalization, privatization and globalization. And the first part of this new economic policy is liberalization. Today I will discuss about the aspects of this liberalization policy, how this policy is implemented for the growth and development of the country, and what are the benefits of the liberalizations of our economic growth. So firstly, you will try to understand the meaning of liberalization. Liberalization of the economy means freedom of the producing unit from direct or physical control. It means when the governments implemented not any restrictions for the production of the commodity and highlight the production sectors by its policy. So also liberalizations of the economy means freedom of the production unit from direct or physical controls. So this is very essential, imposed by the government. The government always try to be highlight that growth and development is the main issue of the country, and by this new economic policy the focus was to the aggregate growth and development of the country. So prior 1991 government had implanted several types of control on private enterprises. Before this, before 1991 government had controlled all the privatization sector and imposed many restrictions for the production, but after the liberalizations many change has come. So we can say that what are the features of the liberalizations and how the liberalization policy impact our economic growth. तो economic reforms under liberalizations. अब हम बात करेंगे बच्चों की इसके द्वारा लिबरलाइजेशन के द्वारा क्या रिफॉर्म्स हुए. नंबर 1, इंडिविजुअली सेक्टर्स रिफॉर्म. अगर मैं इसको बोलूं, पहला जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ. इंडस्ट्रियल जो सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि हमने एबोलिशंस ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. सबसे पहले हमने लाइसेंसिंग को सरकार ने कम किया जिससे कि प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए. कंट्रोलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे हमने पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल किया और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री भारत में फले फूले. डी रिजर्वेशंस ऑफ प्रोडक्शंस एरियाज, जो प्रोडक्शंस के एरियाज थे उनको बढ़ावा दिया सरकार ने अपनी नीतियों से. एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, और सरकार ने फ्रीडम रखा, जो इंपोर्ट था उस पर कंट्रोल रखा. दूसरा जो बच्चों इसका था वो था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. देखिए पहला जो हुआ वो हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म और सेकंड हुआ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी गवर्नमेंट implemented many banking and non banking sectors in our economy. बहुत सारे इस तरह की सरकार ने योजनाएं दी जिससे कि ये सेक्टर प्रभावित हो और ये सेक्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाए. तो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज, and the main the financial sector reforms is also one thing is these demonetizations. In 2006 the government of India adopted the policy of demonetization. Before 2016, 1946 and 1963 also the government has adopted the demonetizations policy. Demonetizations means बच्चों क्या होता है, जो लीगल टेंडर्स है उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर देती है. जो मुद्रा हमारे चलन में है सरकार उसको उस मुद्रा के चलन को रोक देती है, जो टेंडर नोटिस है उसको खारिज कर देती है और नई करेंसी मार्केट में लेके आती है. इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि जो ब्लैक मनी है वो अपने आप बेकार हो जाती है और सरकार टेररिस्ट को भी इससे बहुत कंट्रोल करने में रहती है और जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसको भी कंट्रोल करती है. तो डिमोनेटाइजेशन भी सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथियार है फाइनेंशियल सेक्टर का. आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी 2016 में आपने देखा था तो कि मोदी गवर्नमेंट ने जो चलन में 1000 और 500 का नोट था उस पर प्रतिबंध लगाया और नई करेंसी को लेकर आए. उसके पीछे जो मकसद था वो यही था कि जो ब्लैक मनी है वो नष्ट हो जाए और जो लोग जो यहाँ से ट्रेडिंग करते हैं, जो ब्लैक ट्रेडिंग करते हैं, उसको खत्म किया जाए. तो ये भी एक सरकार के पास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का एक तरीका होता है बच्चों. इसके बाद देखिए फिस्कल रिफॉर्म्स. फिस्कल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कैसे करती है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से. गवर्नमेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टैक्सेस को इस तरह से लगाती है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, जो इंडस्ट्रीज लोग लगा रहे हैं उनको बढ़ावा मिले, उनको मनोबल बढ़े. और लास्ट वन इज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में बच्चों हम कहते हैं कि विदेशों से जो हम व्यापार कर रहे हैं या विदेशी मुद्रा को जो भारत में आ रही है उसके साथ हमारी क्या लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद इंपैक्ट पड़ेगा. तो इट्स वेरी क्लियर दैट आफ्टर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी दीज 4 सेक्टर हाईलाइटेड वेरी शार्पली. इंडस्ट्रियल
various sector reforms, financial sector reform, fiscal reforms and external sector reforms. So today I have discussed all the aspects of liberalization policy and the impact of liberalization policy in our economy. So thank you very much. In next period I will discuss about the other factor of this lesson. So have a good day, take care and be safe. Thank you very much.